A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is consumers equilibrium. So in the last classes we have already discussed what is the meaning of the consumer, what is basically the topic utility, what are the components or the approaches of the utility, that is cardinal utility and the ordinal utility. Next we have started that is total utility and the marginal utility. After that we have completed what is law of diminishing marginal utility, that is DMU. So after that what we have discussed, yes, consumer equilibrium. Okay, so in the consumer equilibrium we have discussed about the consumer equilibrium in case of one commodity and the consumer equilibrium in case of two commodity. Okay, so till here we have already discussed in the last class. So in today's class we are going to start a new topic of this chapter 2, that is consumer equilibrium. So the topic is consumer behavior through the ordinal utility approach, right? So cardinal utility, when we talk about the what is cardinal utility, so when the utility is measured in the quantitative terms like 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit and so on. And when we talk about the ordinal utility, so it is given by the Hicks and the Allen. So in this we have discussed that is when the utility is measured in the terms of the qualitative terms. Here we are giving the order or the preferences, okay, rank. That means first rank, second rank, whatever we consume, if we have the options of the 4 pens of the different companies, so what will we will give the preference. So for example, if we give the preference to the Cello pen as comparison to the Reynolds pen, so here we are giving the rank. So in the ordinal utility we all are talking about basically in the qualitative terms, but when in the cardinal utility that we have discussed in the consumer equilibrium in case of one commodity, two commodity, as well as we have discussed about the DMU, law of diminishing marginal utility. So there the cardinal utility operates, but in the case of when here we are going to discuss about the consumer behavior, consumer budget, consumer constraints, budget line, price line. So we will talk about the ordinal utility. Okay, so let's get started with the consumer behavior through the ordinal utility approach. Okay, so the heading is here, that is consumption bundle. Consumption bundle. Consumption bundle. Okay, so let's discuss what is consumption bundle. So consumption bundle is a combination of the quantities of the two goods. This is also called the bundle of goods. Would denote a bundle having x1 amount of good 1 and the x2 amount of the good 2. So when we talk about the consumption bundle, it is the combination of the quantities of two goods. Okay, combination of the quantities of the two goods. यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि टू गुड्स की क्वांटिटीज का कितना कॉम्बिनेशन है. ओके, सो यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बंडल ऑफ द गुड्स. इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ गुड्स. बंडल ऑफ गुड्स. फॉर एग्जाम्पल हियर x1 and x2. So it is the combination of the quantities of the two goods. That means how much quantity of the one commodity we consume and how much quantity of the second commodity we consume, so that we get the maximum satisfaction. So the ultimate aim of the any consumer is to earn the maximum satisfaction, right? So this is the simply the consumption bundle. It is the combination of the quantities of the two goods, or it is also called as the bundle of goods. Here x1 and x2 are the two commodities and the quantities of the two goods. Okay, so how much amount of the commodity one we consume and how much of the quantity of the second good we
कंज्यूम सो दैट वी गेट द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन. ओके, सो अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज यस 30 और 40. सॉरी, तो यहाँ पे ये 30 और 40 क्या शो कर रहा है? 30 और 40 ये शो कर रहा है इफ वी कंज्यूम टू कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड ऑरेंज. Okay, so too many options are given, that is 20 and 30, 40 and 60 and so on. So in this case consumer are consuming 30 units of the apple and the 40 units of the orange. In this case consumer are consuming 20 unit of the apple and the 30 unit of the orange. In this case consumer are consuming 40 unit of apple and the 60 unit of the orange. So this is the consumption bundle. It is the combination है किसका? quantities of the two goods की quantity का जो combination होता है that is called the consumption bundle. अब consumption it's depend कि consumption इसको consume करेगा, consumer इसको consume करेगा और consumer इसको consume करेगा. So it is totally depend upon the income of the consumer as well as the price of the any commodity. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है. बिकॉज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज द सिंपली द स्कार्स रिसोर्सेज और द रिसोर्सेज विच इज कन्फाइंड और द लिमिटेड. राइट, तो यहाँ पे क्या है कि जो रिसोर्स है मनी इनकम कंज्यूमर की है वो क्या है? एक लिमिटेड है. तो उस लिमिटेड अमाउंट में कोई भी कंज्यूमर कितनी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी इज गिवन. ओके, ये सारे जो चीजें दैट इज विल बी दी बजट सेट. अभी डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो कंजप्शन बंडल क्या हुआ? कंजप्शन बंडल इज सिंपली दी कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द टू गुड्स. सो बंडल ऑफ गुड्स यहाँ पे हम लोग अगर ले रहे हैं कि टू गुड्स का बंडल क्या है? 30-40, 20-30, 40-60. एग्जाम्पल में हम लोग ने एप्पल या ऑरेंज ले लिया, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है. तो कौन से क्वांटिटी को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा? सो दिस इज द कंजप्शन बंडल. राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज बजट सेट. ये हो गया आपका कंजप्शन बंडल. नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बजट सेट क्या होता है. सॉरी, बजट सेट. Okay, budget set. Okay, so it refers to the all the consumption bundles. इसमें क्या आता है? वो सारे कंजप्शन बंडल्स जो कंज्यूमर प्रेफर कर रहा था दैट द कंज्यूमर कैन बाय, जो कंज्यूमर बाय कर सकता है बाय यूजिंग हिज मनी इनकम. जब कंज्यूमर की इनकम क्या है? गिवन है एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. किसी भी मार्केट प्राइस पे कंज्यूमर कितनी कमोडिटी को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है. कितने बंडल ऑफ गुड्स को कंज्यूम कर रहा है जब उसके पास उन कमोडिटी की प्राइस दी है और कंज्यूमर की अपनी क्या है? इनकम है. ओके, तो लिखेंगे इट रेफर्स टू दी ऑल combination of or we can say it refers to the all consumption bundle. Consumption bundles that the consumer can buy, that the consumer can buy
by using his money income, using his money income at the prevailing market price, at the prevailing market price. ओके, तो ये क्या हो गया? बजट सेट इज सिंपली द सिचुएशन, ऑल दी रेफर्स टू दी ऑल कंजप्शन बंडल्स, सारे क्या है वो कंजप्शन बंडल्स हैं, ओके, दैट द कंज्यूमर कैन बाय, जो कंज्यूमर क्या है बाय कर सकता है, कब? यूजिंग हिज मनी इनकम, जो भी उसकी मनी इनकम है, एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, जो कमोडिटी को वो कंज्यूम करेगा उसकी जो भी प्राइस दे रखी है उस पे कंज्यूमर कितनी कमोडिटी को कंज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड द बजट सेट. सो द बजट सेट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स. ठीक है, जो बजट है, बजट सेट है, वो बेसिकली टू फैक्टर्स पे बेस्ड होता है. टू फैक्टर्स, एंड द टू फैक्टर्स आर, फर्स्ट वन इज मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, and price of good one and good. ठीक है, मतलब कि जो भी बजट सेट है, जो भी किसी भी कंज्यूमर का बजट सेट है, मतलब उसका जो बजट है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा कि उसके पास उसकी इनकम कितनी है कंज्यूमर की, और साथ ही साथ प्राइस क्या दे रखा है गुड वन और गुड टू का. ठीक है, प्राइस क्या है गुड वन और गुड टू का, और कंज्यूमर की इनकम कितनी है, इस पे ही पूरा बेस्ड होता है. ठीक है, सो ऑल कंजप्शन बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय, जो कंज्यूमर बाय कर सकता है, कब? व्हेन बाय यूजिंग हिज मनी इनकम, जो भी कंज्यूमर की मनी इनकम है, और जो भी कमोडिटी, जो भी प्राइस, जो भी कमोडिटी वो परचेज कर रहा है उसकी प्राइस कितनी दे रखी है. ठीक है, तो कंज्यूमर के पास क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, उसकी मनी इनकम, उसी इनकम में कंज्यूमर को क्या करना है, कमोडिटीज को परचेज करना है, सो दैट ही गेट्स द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन. सो एट द गिवन प्राइस बजट सेट इंक्लूड्स ऑल दोज कंजप्शन बंडल्स विच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू हिज इनकम. ठीक है, बजट सेट इंक्लूड वो करता है कि कंज्यूमर उन्हीं सारी चीजों की कमोडिटीज को परचेज करेगा जो उसकी इनकम के इक्वल है, या तो इनकम के इक्वल है या तो इनकम से कम है. कोई भी कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर किस पे बेस्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इनकम मिल रही है 30,000, उस इनकम का, उस 30,000 पे मैं कितना क्या करूंगी, मेरा कितना कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर होगा, वो क्या होना चाहिए, मेरा एक्सपेंडिचर या तो मेरी मनी इनकम, फॉर एग्जांपल मेरा 40,000 मेरी इनकम है या 30,000 मेरी इनकम है, उस 30,000 में कोई भी एक आइडल कंज्यूमर होगा, वो क्या करेगा, या तो अपना एक्सपेंडिचर जो भी इसका कंजप्शन है या तो मनी इनकम के इक्वल रखेगा, दैट मीन्स 30,000 उसकी इनकम है तो 30,000 इसका एक्सपेंडिचर भी होगा, या वो अपनी इनकम, अगर उसकी इनकम 30,000 है तो उससे वो कम ही करेगा, कभी भी वो उससे इनकम से ज्यादा की बात नहीं करता है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिचुएशन है दैट इज P1 प्लस X1 प्लस P2 X2 is less than or equal to the money income of the consumer. आपको याद होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी व्हेन वी वर डिस्कसिंग, तो हम लोग यही देखे थे ना कि ये P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर उसी केस पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगा जब कंज्यूमर का क्या है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द मनी इनकम, और या तो एक्सपेंडिचर मनी इनकम के इक्वल हो, या तो एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से कम हो. तो या तो ये क्या हो, इनकम ज्यादा हो, और या तो इक्वल हो. तो इसी को यहाँ पे P1 क्या शो कर रहा है, P1 इज शोइंग दैट द प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी, जो भी, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एप्पल ले रहे हैं तो प्राइस, एप्पल की प्राइस क्या दी है, और एप्पल
कि अगर प्राइस दी है तो कंज्यूमर कितनी उसकी क्वांटिटी को परचेज कर रहा है. इधर ही और शी इज परचेजिंग दी 1 kg 2 kg एंड सो ऑन. एंड P2 इज द प्राइस ऑफ द ऑरेंज. ऑरेंज की प्राइस क्या है. एंड X2 इज द क्वांटिटी ऑफ द ऑरेंज की उसकी प्राइस जब दे रखी तो कितनी क्वांटिटी वो ले रहा है. एंड दिस इज द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है. तो कंजप्शन कंज्यूमर कितना करेगा उसका ये डिपेंड करता है या तो उसकी मनी इनकम के उसकी जितनी इनकम है वो इसके इक्वल हो और एक्सपेंडिचर उसका इट शुड बी लेस देन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सो दिस इज द सिचुएशन फॉर द एनी कंज्यूमर दैट विच द कंज्यूमर prefers, right? So this is your yes x1 x2 quantity of the good one and the good two. ये जो x1 और x2 क्या दिया है वो क्वांटिटी दिया है good one और good two की. P1 and P2 is the price of the good one and the good two and the M is the money income of the consumer. ठीक है. So इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग ले सकते हैं कि ये शो करने के लिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे होगा. तो एग्जाम्पल्स ऑफ द बंडल्स. We need some more space, that's why. Example of bundles. ठीक है. दो कंडीशन के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे. कब लेंगे. when the P1 x1 plus P2 x2 is equal to the money income of the consumer and second one is P1 x1 plus P2 x2 is less than the money income of the consumer. ठीक है. इन दोनों कंडीशन पे एग्जांपल लेंगे. तो यहाँ पे एक अजम्पशन हम लोग दोनों के लिए ले लेते हैं कि P1 is the ₹4 per unit and price of the second commodity is ₹2 per unit and money income of the consumer is given ₹20. ठीक है. यहाँ पे क्या कह रहा है समझिए. यहाँ पे ये कह रहा है कि कंज्यूमर के पास क्या है. जब कंज्यूमर के पास दो कंडीशन जब होती है हम लोग बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होगा. जब उसकी एक्सपेंडिचर मनी इनकम के इक्वल होगी और एक्सपेंडिचर लेस देन दी मनी इनकम. और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पे मनी इनकम कंज्यूमर की 20 दे रखी है. प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी इज 4 पर यूनिट. हर एक यूनिट पे प्राइस क्या है 4 है. और प्राइस ऑफ द सेकेंड कमोडिटी क्या है वो 2 पर यूनिट. हर एक पे क्या है 2 पर यूनिट है. ठीक है. तो अब कंजप्शन जो बंडल्स है उसको देखते हैं क्या क्या ले रखा है. That is 0 and 10, 1 और 8, 2 और 6, 3 and 4, 4 and 2, 5 and 0. ठीक है. कंज्यूमर के पास क्या है ये सारे बंडल्स हैं. अब इस वाले केस में भी देख एग्जांपल ले लेते हैं. 0 and 2, 1 and 8, 2 and 6, 3 and 4, 4 and 2, sorry, 1 0 0, 1 0, 1 5, 2 2 एंड 2 1. ठीक है. जब प्राइस दे रखी तो कंज्यूमर के पास ये सारे कंजप्शन बंडल्स हैं जो कंज्यूमर को कंज्यूम करने हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखते हैं. अगर पहले का एक लेते हैं फर्स्ट वन एग्जांपल लेते हैं और प्राइस क्या दे रखी है पर यूनिट 4. क्वांटिटी क्या है दैट इज 0 प्लस P2 प्राइस ऑफ द सेकेंड कमोडिटी इज 2
इंटू उसकी 10 विच इज इक्वल टू द मनी इनकम दैट इज 20. तो क्या हो गया 4 इंटू 0 0 प्लस 20. सो 20 इज इक्वल टू 20. ठीक है. कंज्यूमर क्या करेगा, इस कमोडिटी को, इस बंडल को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा. एक और ले लेते हैं 2 और 6 को ले लेते हैं. 2 and 6. ठीक है. प्राइस क्या दे रखी है फर्स्ट की 4, उसकी कमोडिटी 2 यूनिट्स प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 20 जो मनी इनकम है. 4 2 जा 8 प्लस 2 6 जा 12. फिर कितना हो गया 20 इज इक्वल टू 20. सो कंज्यूमर इस वाले बंडल को भी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये उसका एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो जा रहा है, उसकी इनकम के इक्वल है. ठीक है. इस वाले का एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. पहला सेकेंड वन ले लेते हैं 1 और 0. तो P1 क्या है, प्राइस ऑफ दी 2 इंटू 1 प्लस प्राइस ऑफ द सेकेंड कॉम्पोनेंट 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 20. सो ये क्या हो गया 20 इज मोर देन दी 2. क्यों, क्योंकि कंज्यूमर क्या कर रहा है, ये भी कंडीशन सही है, क्योंकि कंज्यूमर या तो उसकी मनी इनकम से इक्वल करेगा एक्सपेंडिचर या तो उससे लेस देन करेगा. ठीक है. एक और ले लेते हैं 2 2 का. सो 2 sorry I have written wrong. Yes, it will be 4 ना. Yes, 4 और 0, so 4 होगा यहाँ पे. तो यहाँ पे 4 इंटू 2 प्राइस दे रखी है, सॉरी प्राइस इज 4 एंड 2 इज दी क्वांटिटी, प्लस प्राइस क्या दे रखी है, दैट इज 2 इंटू 2 20. 4 2 जा 8 2 2 जा 4 20. तो ये क्या हो गया 12 हो गया और 20 हो गया. तो यहाँ पे भी आप देखो मनी इनकम इज मोर देन दी एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर. सो इस केस में यही शो कर रहा है कि कंज्यूमर यही सारे बंडल्स को कंज्यूम करेगा जिसमें उसका एक्सपेंडिचर मनी इनकम से इक्वल हो या तो उसका एक्सपेंडिचर मनी इनकम से कम हो. सो इट शोज द एग्जाम्पल फॉर दी बंडल्स. ठीक है. नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज दी कंज्यूमर बजट कॉन्स्टेंट. ठीक है. कंज्यूमर बजट कॉन्स्टेंट. Okay. The heading is that is consumer budget constant. ठीक है. देखते हैं क्या कह रहा है. So the consumer budget constant refers to a situation. ठीक है. वो ये situation होती है when expenditure on two goods by the consumer should not be more than the income of the consumer. ठीक है. बजट कॉन्स्टेंट वो सिचुएशन होती है जब कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर क्या हो, वो उसके मनी इनकम से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके मनी इनकम से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये कंज्यूमर के लिए उसका कांस्टेंट है. ऐसा नहीं कि अगर कंज्यूमर की इनकम 30,000 है तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 40,000 हो रहा है ना. हम लोग ने बात की कि कंज्यूमर उस केस पे इक्विलिब्रियम होगा या कंज्यूमर का बजट सेट ये होता है या तो उसकी मनी इनकम के इक्वल हो या तो मनी इनकम से उसका एक्सपेंडिचर कम हो. तो कंज्यूमर के लिए बजट कांस्टेंट यही है कि अगर उसका बजट उसकी इनकम 30,000 हो रही है तो 30,000 से उसका एक्सपेंडिचर कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो इन अदर वर्ड बजट कांस्टेंट इज द लिमिट टू द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. ठीक है. कंज्यूमर बजट कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द लिमिट
कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कंज्यूमर के लिए क्या उसकी होती है, लिमिट होती है। बजट लाइन इज कॉल्ड द बजट कंस्ट्रेंट। ये जो बजट लाइन होती है, बजट लाइन होने का मतलब क्या होगा, दैट इज P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अभी पढ़ेंगे, विच शोज दैट द लिमिट ऑफ द बंडल दैट द कंज्यूमर्स कैन अफोर्ड। इसका मतलब यही है कि कभी भी कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है, इट शुड, इफ इट इज मोर देन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो ये सिचुएशन सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दैट केस ही और शी विल सफर द लॉस। उसको लॉस होगा ना, वो निगेटिव में होता जाएगा, डिस सेविंग करने लगेगा। तो ये किसी भी कंज्यूमर के लिए ये सिचुएशन सही नहीं होती है। तो बजट लाइन, कंज्यूमर को इतना ही कंजप्शन करना चाहिए, इतना ही कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए जिस केस में क्या हो, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू दी मनी इनकम, और इट शुड बी लेस देन दी मनी इनकम ऑफ दी कंज्यूमर। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल भी दे रहा है कि इफ दी P1 आपका दे रखा है 4, P2 दिया है दैट इज 2 पर यूनिट, एंड दी मनी इनकम कंज्यूमर की दे रखी है ₹20। तो अगर कंज्यूमर के पास ये सारे बंडल्स है दैट इज 0 एंड 14, और कंजप्शन के बाद बंडल है 1 और 20 एंड सो ऑन। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग लेके करते हैं इसका। P1 पे वैल्यू करेंगे पुट, और 0 प्लस P2 इज 2 इंटू 14 विच इज इक्वल टू दी मनी इनकम इज 20। सो ये 0, 14 टू 28 और ये 20। अब यहाँ पे देखिए 28 becomes more than the money income of the consumer. So this situation is not for the equilibrium situation for the any consumer. ठीक है, सो दिस इज द बजट कांस्टेंट। ये कंज्यूमर के लिए बजट कांस्टेंट है कि उसकी लिमिट है, कंज्यूमर की एक्सपेंडिचर की लिमिट है। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट बी मोर देन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 20, और मनी इनकम इज 24। यहां पे देखिए 44 इज मोर देन दी मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर का हो रहा है वो क्या है, उसकी इनकम से ज्यादा हो जा रहा है। सो दिस इज दी कंज्यूमर्स बजट कांस्टेंट। यही कंज्यूमर का क्या है, बजट कांस्टेंट की सिचुएशन होती है। सो द टॉपिक इज हियर दैट इज बजट लाइन। Budget line is also called as the price line. So the next topic is that is budget line or the price line, as well as we have also discussed about the what are the different features of the budget line and features of budget line. Simply, so budget line or the price line. A budget line, it represent the different bundles. Okay, ये क्या करता है, ये different bundles को present करता है that the consumer can purchase. जो consumer क्या करता है, वो purchase करता है spending his entire money income at the given price. ठीक है, basically आप you can also see in your household, आप अपने घर पे देखते होगे कि अगर इनकम आती है, फादर और मदर जो भी हमारे पेरेंट लेके आते हैं, तो क्या होता है, इसका बजट पहले प्रिपेयर होता है कि कहाँ कहाँ पे हमको एक्सपेंडिचर करना है, कौन कौन से मेन एक्सपेंसेस है, हमारे फूड स्टफ्स है या किसी का फीस पेमेंट है और अदर एक्सपेंडिचर। तो पूरा उस पर बजट प्रिपेयर होता है। दैट मीन्स कंज्यूमर ये देखता है कि उसकी जो भी मनी इनकम है, उस मनी इनकम से कंज्यूमर को कहाँ कहाँ पे उसको स्पेंड करना है, जब उसकी मनी इनकम ऑलरेडी गिवन है एंड द प्राइस ऑफ द दोज कमोडिटी। उसको पता होता है कि हाँ, अगर फीस है, अगर इस मंथ की तो कितनी है, 5000 है। अगर उसको फूड आइटम्स पे देना है तो कितना एक्सपेंडिचर होगा, 2000 होगा। अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, होम रेंट पे करना है, तो उसको सारी की प्राइस पता है और उसको ये भी पता है उसकी मनी इनकम कितनी है। उस मनी इनकम के अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर क्या करता है,
अपने बजट को प्रिपेयर करता है, ठीक है, उसका कहाँ पे कितना प्राइस लगे। तो सिंपली द बजट लाइन इज द, इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट बंडल्स, ठीक है, डिफरेंट बंडल्स, डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट कमोडिटी के बंडल्स है जो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर परचेज करता है व्हेन ही और शी स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, जो उसकी इनकम है उसको स्पेंड करता है एट अ गिवन प्राइस।